let's begin the chapter Animal Kingdom and we will cover it completely today. तो चलो हम शुरुआत करते हैं चैप्टर से, नेमली एनिमल किंगडम, और एनसीईआरटी लाइन टू लाइन हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है? और आई होप ये सारा आपको याद हो जाए. When you look around, you will observe different animals with different structure and forms. As over a million species of animals have been described till now, the need for classification becomes all the more important. तो इसमें क्वेश्चन क्या आ सकता है कि कितनी स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स जो हैं अभी तक डिस्क्राइब किए हुए हैं. तो अ मिलियन ऑफ स्पीशीज़ जो डिस्क्राइब किए गए, और ये बहुत बड़े नंबर होता है, तो इसलिए हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है. द क्लासिफिकेशन हेल्प्स इन असाइनिंग अ सिस्टमैटिक पोजिशन टू न्यूली डिस्क्राइब स्पीशीज़. जो क्लासिफिकेशन है हमें किस में हेल्प करता है, ताकि हम एक पोजीशन दें, किसी नए डिस्क्राइब्ड स्पीशीज़ को एक सिस्टमैटिक पोजीशन दें. और क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मिलियन स्पीशीज़ हैं अभी तक डिस्क्राइब किए गए हैं, और हम इजीली उनको एक सिस्टमैटिक पोजीशन दे सकें, और फिर हमारे लिए ईजी हो टू आइडेंटिफाई एन ऑर्गेनिज्म, कौन कहाँ का है, कौन किस किंगडम का है. ओके, so basis of classification, in spite of the difference in structure or form, there are fundamental features which are common to various individuals in relation to arrangement of cells, body, symmetry, nature of coelom, patterns of digestive, circulatory, respiratory system. मतलब अगर हम देखें तो एनिमल्स में स्ट्रक्चर और फॉर्म में बहुत वेरिएशंस होती है, ठीक है, लेकिन फिर भी इनमें कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं जो कि बहुत सारे इंडिविजुअल्स में कॉमन होता है, जैसे कि सेल्स कॉमन हो सकती है, बॉडी सिमेट्री कॉमन हो सकती है, नेचर ऑफ सीलोम कॉमन होता है, पैटर्न्स ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम कॉमन हो सकता है. ये जो फीचर्स हैं जो हमने बोला कि कुछ इंडिविजुअल्स में कॉमन होते हैं, ये यूज़ किए जाते हैं ताकि हम एनिमल्स को क्लासीफाई कर सकें, और हम उन फीचर्स को भी डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है. Levels of organization. Though all members of Animalia are multicellular, Animal Kingdom जो है it's a multicellular kingdom. All of them do not exhibit same pattern of organization of cells. For example, sponges. Cells are arranged in loose cell aggregates. They exhibit cellular level of organization. तो मेरा कुछ ऐसा पैटर्न रहेगा कि मैं पूरा पैरा पढ़ूंगी एंड उसके बाद एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है. Though all members of Animalia are multicellular, all of them do not exhibit the same pattern of organization of cells. For example, in sponges, the cells are arranged in loose cell aggregates. They exhibit cellular level of organization. Some division of labor occur among the cells. In coelenterates, the arrangement of cells is very complex. Here, the cells performing the same function are arranged into tissues, hence called tissue level of organization. A still higher level of organization, that is organ level, is exhibited by the members Platyhelminthes and other higher phyla where tissues are grouped together to form organs, such specialized to form for a particular function. In animals like Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, Chordata, organs have associated to form functional units, each a system concerned with a specific physiological function. The pattern is called organ system level of organization. Organ system in different group of animals exhibit various pattern of complexities. For example, digestive system in Platyhelminthes has only a single opening to the outside of the body that serves as both mouth and anus, and is hence called incomplete. A complete digestive system has two opening mouth and anus. Similarly, the circulatory system may be two types, open and closed. Let's explain this. तो जो हमें पता है कि जो एनिमल किंगडम है वो जो है वो मल्टी सेलुलर किंगडम है, ठीक है. सब में सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स नहीं है. कुछ में ना लूज एग्रीगेट्स होते हैं. लूज एग्रीगेट मतलब सेल्स हैं वो लूजली अरेंज्ड है, ना वो टिश्यूज़ बना रहे हैं, ना वो ऑर्गन बना रहे हैं, ना वो ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं. तो ऐसे को हम बोलते हैं स्पॉन्ज, ठीक है. और इस ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं हम सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. और कुछ सम डिवीजन ऑफ लेबर ऑकर अमंग द सेल. और ऐसा नहीं है कि ये सारे सेल्स एक ही काम करते हैं, मतलब ये डिवीजन ऑफ लेबर होते हैं. कुछ सेल्स कुछ काम करती है, कुछ सेल्स कुछ काम करती है. सो देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर अमंग द सेल्स. अब जैसे सीलेंट्रेट्स की बात करो या तुम बात करो टीनोफोरा की, दोनों में ही होता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इसमें क्या होता है कि जो सेल्स होती हैं जो कॉमन फंक्शन परफॉर्म करती है वो टिश्यूज़ में अरेंज होती है, ठीक है. और इससे भी हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलती है जिसमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे कि प्लैटीहेल्मिन्थेस में होती है. और जो हायर फाइला होता है ना, और जो बाकी हायर फाइला जैसे कि प्लैटीहेल्मिन्थेस, और ये बोल रहा है कि बाकी कुछ हायर फाइला होता है जैसे कि प्लैटीहेल्मिन्थेस एक हायर फाइला है. उनमें क्या होता है, उनमें जो टिश्यूज़ होते हैं ऑर्गन बनाते हैं. तो ऐसे तरह की
ऑर्गेनाइजेशन को हम ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जो किस में मिलता है, प्लैटीहेल्मिन्थीज में। और एनिमल जैसे कि हमारे पास एनालिडा है, आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है, और इकाइनोडर्मीटा है, कॉरिएटा है। इनमें क्या है कि जो ऑर्गन्स है वो एक फंक्शनल सिस्टम बना रहे हैं जिनको बोलते हैं हम ऑर्गन सिस्टम। अब ऑर्गन सिस्टम जो होता है एक स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन करते हैं। जैसे कि अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे, वो डाइजेशन करेंगे तो एक पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं ये ऑर्गन सिस्टम। तो इस ओब्वियसली इस पैटर्न को हम बोलेंगे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम्स इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स एग्जिबिट वेरियस पैटर्न्स ऑफ कम्प्लेक्सिटीज। फॉर एग्जाम्पल, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है प्लैटीहेल्मिन्थीज, और इस ये बोल रहा है कि ऑर्गन सिस्टम जो होता है डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स में, इनमें भी कम्प्लेक्सिटीज़ होती है, मतलब कि इन पे भी वेरिएशन होती है। जैसे कि अगर हम प्लैटीहेल्मिन्थीज की बात करें, उसमें उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में एक ही ओपनिंग होते हैं, ये याद रखना, और टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। लेकिन कुछ में जो होती है उसमें दोनों ओपनिंग होती है। तो जो प्लैटीहेल्मिन्थीज है उसमें एक ही ओपनिंग है टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, जो दोनों ही काम करती है, माउथ भी काम करती है वो, और एनस की तरह भी काम करती है, तो इसलिए बोलते हैं हम उनको इनकम्प्लीट। तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मिलता है प्लैटीहेल्मिन्थीज से। कॉमन कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ टू ओपनिंग, माउथ एंड एनस। और जो हमें कहाँ पर मिलता है, ये बोला एस्का हेल्मिन्थीज से लेकर कॉरिएटा तक हमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मिलता है, ठीक है। ओपन टाइप जो होता है, इसमें ब्लड जो होता है हम हार्ट से निकलते हैं और सीधे वो सेल्स और टिश्यूज होते हैं, इसमें बात होती है, कोई वेन्स नहीं होती है, कोई वेसल्स नहीं होती है। क्लोज टाइप में जो ब्लड होता है वो सीरीज ऑफ वेसल्स से पास होता है, और वेरिंग डायमीटर्स, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज से ब्लड पास होता है, ठीक है। अब सिमेट्री, एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज, जो एनिमल्स हैं उनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। मैं अब मुझे लगता है पैरा पढ़ूंगी नहीं, मैं जहाँ जहाँ मुझे लगेगा कि मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए मैं वहाँ एक्सप्लेन करूँगी, और साथ साथ इंग्लिश में भी पढ़ूंगी, विच आई थिंक दैट यू कैन अंडरस्टैंड ईजिली, बिकॉज ओवरऑल सारा थोड़ी आएगा, ओवरऑल पॉइंट्स आएंगे जो ऑब्वियसली मेन पॉइंट्स होंगे। स्पॉन्ज जो होते हैं वो एसिमेट्रिकल होता है, ये तो क्लियर है ना। स्पॉन्ज जो होते हैं ना, जैसे कि जैसे हम बर्तन धोते हैं, वो जो होता है वो, या कुछ भी करते हैं, तो वो जो होता है एसिमेट्रिकल होता है, कि अगर हम कोई भी प्लेन पास करें उसको डिवाइड नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई भी हम प्लेन पास करें और जो सेंट्रल एक्सिस से और जो बॉडी को डिवाइड करेगा दो इन आइडेंटिकल हाफ्स में, और हम वो प्लेन ना किसी भी एंगल से पास कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। तो आप ये अभी ही याद रखो कि रेडियल सिमेट्री जो होती है, देखो पॉरीफेरा तो पहला वाला है, उसके बाद आता है सीलियंट्रेटा, टीनोफोरा। जो ये है पॉरीफेरा, उसमें तो सिमेट्री ही नहीं है, वो एसिमेट्रिकल है। बट जब हम बात करते हैं टीनोफोरा की, सीलियंट्रेटा की, तो वो जो होता है उसमें होती है रेडियल सिमेट्री, और इकाइनोडर्मेटा में भी रेडियल सिमेट्री होती है। लेकिन इतना याद रखना है कि इकाइनोडर्मेटा जो होता है अडल्ट इकाइनोडर्मेटा में होती है रेडियल सिमेट्री, तो यही याद रखना। सीलियंट्रेटा, टीनोफोरा और अडल्ट इकाइनोडर्मेटा में है रेडियल सिमेट्री, बस इन्हीं में है। हैव दिस काइंड ऑफ बॉडी प्लान। एनिमल जैसे कि एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, इनमें बाइलेटरल सिमेट्री होती है, मतलब हम इनमें प्लेन को सिर्फ एक ही, मतलब हम प्लेन को डिवाइड कर सकते हैं दो इक्वल हाफ्स में, लेकिन एक ही एंगल से डिवाइड कर सकते हैं। उसमें बहुत सारी मल्टीपल, रेडियल सिमेट्री में ना मल्टीपल एंगल से हम डिवाइड कर सकते हैं, और एसिमेट्रिकल तो एक ही है हमारे पास, वो है पॉरीफेरा। सो इट्स नाउ इजी टू लर्न, यहाँ याद करना है। डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, एनिमल जिनमें जो सेल्स होते हैं वो दो एम्ब्रियोनिक लेयर्स में होते हैं, जैसे कि एक्सटर्नल एक्टोडर्म और इंटरनल एंडोडर्म, उसको बोलते हैं हम डिप्लोब्लास्टिक, जैसे कि सीलेंट्रेटा, ठीक है। इसमें जो होता है सेल्स अरेंज होकर दो एम्ब्रियोनिक लेयर्स में, एक्टो और एंडो, इनको बोलते हैं हम डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। मतलब कि जैसे सीलेंट्रेटा डिप्लोब्लास्टिक है, टीनोफेरा डिप्लोब्लास्टिक है, क्योंकि ऑब्वियसली इनमें दो ही लेयर्स होती है। लेकिन अगर एक मीजोग्लिया प्रेजेंट होगी, अनडिफरेंशिएटेड लेयर प्रेजेंट होगी एक्टो और एंडोडर्म में, तो उसको हम बोल देंगे डिप्लोब्लास्टिक। सॉरी एक सेकेंड, आई एम सॉरी दैट्स नॉट मीजोग्लिया, दैट्स मीजोडर्म, ओके। आई एम सॉरी, स्लिप में निकल गया। दैट मीजोडर्म अगर प्रेजेंट होगा तब ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बट अगर मीजोग्लिया प्रेजेंट है, ये जो होता है ये अनडिफरेंशिएटेड लेयर है, ये डिफरेंशिएट नहीं है, ये मैच्योर नहीं हुई है, तो अगर ये प्रेजेंट है तो इसको हम बोलेंगे क्या, डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। डायग्राम आप अच्छे से देखो, ये जो डायग्राम है इसमें डिप्लोब्लास्टिक है, बीच वाला जो है मीजोग्लिया है, और जो बी है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, इसमें बीच वाली लेयर जो है मीजोडर्म है। The animals in which the developing embryo has a third germinal layer, mesoderm, in between the ecto and endo are called triploblastic. Platyhelminthes से लेकर chordata सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो शॉर्ट में तुम टीनोफोरा तक रखो ना, वो सारी डिप्लोब्लास्टिक है, और प्लैटीहेल्मिन्थीज से लेकर कॉर्डेटा तक ना ट्रिप्लोब्लास्टिक है, क्लियर। अब है सीलोम, ठीक है। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन। देखो जैसे हमारी बॉडी वॉल होती है ना, एलिमेंट्री कनाल की गट वॉल, वो जो होती है उसके बीच में अगर कैविटी प्रेजेंट है ना, ये इंपॉर्टेंट है फॉर क्लासिफिकेशन। अगर बॉडी कैविटी जो होगी मीजोडर्म से लाइन होगी,
द बॉडी कैविटी विच इज लाइन बाय मेसोडर्म, इसको कहते हैं सीलोम। अगर बॉडी कैविटी मेसोडर्म से लाइन है उसको हम बोलेंगे, उस बॉडी कैविटी को सीलोम बोलते हैं। एनिमल्स जिनमें सीलोम होता है उनको हम सीलोमेट्स बोलते हैं, जिनमें नहीं होता है उनको हम एसीलोमेट्स बोलते हैं। देखो सीलोमेट्स में आते हैं एनालिडा, मोलस्का, मतलब एनालिडा से लेकर कॉर्डेटा तो सारे ले लो। और इन सम एनिमल जो बॉडी कैविटी होती है वो मेसोडर्म से लाइन नहीं करती है, लेकिन जो मेसोडर्म होता है वो पाउच के फॉर्म में होता है, मतलब कि स्कैटर्ड होता है, कंप्लीट नहीं होता है, तो इसलिए हम बोलते हैं उसको सीरोसीलोमेट। और एग्जाम्पल है एस्कल हेलमिंथीस। और जैसे कि एनिमल जो होता है जिनमें बॉडी कैविटी होती ही नहीं है, मतलब कैविटी है ही नहीं, तो उनको बोलेंगे एसीलोमेट। और उसकी एग्जाम्पल है प्लाटी हेलमिंथीस। ये क्लियर हो गया? प्लाटी हेलमिंथीस क्लियर हो गया कि उसमें कैविटी है ही नहीं। इसकी डायग्राम इंपॉर्टेंट है। जैसे पहले ए डायग्राम में ना सीलोमेट्स है, सीलोम है, देखो कैविटी है, बी में ना कुछ पैचेस में प्रेजेंट है, सो देयर इज नॉट क्लियर कैविटी, राइट, सो दैट्स व्हाई इट्स नोन एज सीरोसीलोमेट। और जो सी है वो ए सीलोमेट है, मतलब देखो कैविटी है ही नहीं, ठीक है। अब सिगमेंटेशन, इन सम एनिमल जो बॉडी होती है वो एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों तरीके से डिवाइड होती है सिगमेंट में, विद अ सीरियल रिपीटेशन ऑफ लीस्ट सम ऑर्गन्स। कुछ ऑर्गन जो है वो सीरियली रिपीट करते हैं इन ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कि अर्थवॉर्म, अगर सबसे अच्छी एग्जाम्पल है इसकी वो अर्थवॉर्म ही है, जो कि किस में आता है, वो एनालिडा में आता है, ठीक है। द बॉडी शोज दिस पैटर्न कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन, और इस फिनोमेना को मेटामेरिज्म बोलते हैं। नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड, ओके, नोटोकॉर्ड इज मेसोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर। ये जो होता है ये मेसोडर्मली डिराइव होता है रॉड लाइक स्ट्रक्चर, जो फॉर्म होता है डॉर्सल साइड में ड्यूरिंग एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट। जब एम्ब्रियो डेवलप कर रहा होता है तो ये डॉर्सली फॉर्म होता है, और इसका ओरिजिन जो होता है मेसोडर्मल होता है, और एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, इतना तो क्लियर है। एनिमल जिनमें नोटोकॉर्ड होता है उनको कॉर्डेटा बोलते हैं, और जिनमें फिर नोटोकॉर्ड वर्टेब्रल कॉलम में कन्वर्ट होता है उनको वर्टेब्रेटा बोलते हैं। अब जिनमें नोटोकॉर्ड है ही नहीं उनको नोटोकॉर्ड नॉन कॉर्डेट्स बोलते हैं, क्लियर, ठीक है। उसके बाद आता है, देखो कॉर्डेटा का तो सारा ग्रुप वही होगा जो मतलब जिनमें नोटोकॉर्ड है। अब जो कॉर्डेटा से पहले होगा, चाहे फिर वो हेमी कॉर्डेटा ले लो तुम, या तो कुछ भी ले लो जो कॉर्डेटा में नहीं आ रहा है, तो वो डेफिनेटली उसमें नोटोकॉर्ड नहीं है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, ये मैं क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज आपको एक एग्जाम्पल्स अभी याद रखनी, क्योंकि बाद में फिर बहुत चीज़ें ईजी होती है। एज पर जैसे मैंने चैप्टर पढ़ा है, मेरे हिसाब से चीज़ें यहाँ पर अगर याद हुई तो ज़्यादा बेटर है, वहाँ थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है क्योंकि वहाँ एग्जाम्पल्स भी होती है, ओके। Classification of animals, जो broad classification of animalia based on common fundamental features as mentioned in the preceding structure is given in figure 4.4। देखो हम ना क्लासिफिकेशन करेंगे एनिमल्स की, ये डायग्राम को स्किप नहीं करना, अच्छे से पढ़ना। देखो सबसे पहले नीचे एक लाइन लिखी है, इकाइनोडर्मेटा एग्जिबिट करते हैं रेडियल और बाइलेटरल सिमेट्री डिपेंडिंग ऑन द स्टेज। ऑब्वियसली हमने पहले ही बोला रेडियल तब शो करेगा जब एडल्ट स्टेज में होगा, और बाइलेटरल जब लार्वा स्टेज में होगा। अब एनिमल्स सेल्यूलर लेवल पे हमें पता है एक ही चीज़ आती है, वो है पॉरीफेरा, और हमें पता है ये एसिमेट्रिकल होती है, ये आप डायग्राम में देखो फिगर 4.4। और ये जो मोस्टली एसिमेट्रिकल होता है, ए सीलोमेट्स होते हैं और पॉरीफेरा होते हैं। फिर टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम, इसमें आता है रेडियल बाइलेटरल। बाइलेटरल में आते हैं, देखो पहले हम रेडियल की बात करें, इसमें आते हैं ए सीलोमेट जैसे कि सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा, ठीक है। बाइलेटरल में जिनमें ए सीलोमेट, जिनके पास कैविटी है ही नहीं, प्लाटी हेलमिंथीस विद फॉल्स सीलोम, स्कल हेलमिंथीस। फॉल्स सीलोम का क्या मतलब है मैम, मतलब फॉल्स सीलोम मतलब कि जिनमें पैचेस में प्रेजेंट है, राइट। उसके बाद विद ट्रू सीलोम, सीलोमेट्स एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, डन। तो नेक्स्ट और डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे फाइलम्स, और फिलहाल के लिए इट्स एनफ, सो थैंक यू।